Hello, good evening, Assalamu alaikum and welcome to HMR Waterfront presents Game On Hai. मैं हूँ Rohan Nadeem and what we just witnessed in Barbados was the final, an epic final between India and South Africa, and in the end it was India lifting that World Cup after 17 years, a glory that they've been after for years and years, coming so close, and they've finally done it thanks to their captain Rohit Sharma and those 11 players who were out today, but also the entire squad, the support staff, the head coach. You could see in those visuals what it meant to them, and we can't wait to relive the entire match, the entire tournament as a whole, how it went for the Indian team. But congratulations to all the fans of India who were supporting them through and through in this World Cup. They needed that support going into this match because the nerves were there and you could sense the tension as every ball was bowled. We will relive the whole match as well with our post-match discussion. We have, as always, our wonderful panel, and we have Miss Erin Holland, who's smiling next to me, dressed in her beautiful white clothes. Erin, what a final, a match worthy of a final, and we will relive all of that in just a bit. I'll quickly introduce my wonderful panel of Game On Air who are here to dissect not just the match but also the whole tournament. We've got Shoaib Akhtar, Martin Guptill, Yunus Khan and Mohammad Hafiz. Gentlemen, welcome back to Game On Air. Pleasure to have your company with us once again as we take another look at the all-important final. But before we go towards that, let's take a little replay. Let's watch a little replay of our pre-match show, a little clip from a prediction maybe of something about reverse swing happening in the match. Please देखें. I think these two will do a great job for them when the ball will start reversing. Yeah. Because I'm dead sure on this track, because it's very dry, the surface is very dry, and also the square is also dry. So reverse will play a major part to win the World Cup for India. MVP? Obviously, if it's reversing, then Bumrah is the main man. Okay. Professor, one last time. Hit the nail on the head as always. That's exactly what happened, and it truly was that over by Bumrah and then followed by Arshdeep that really kind of sealed the fate of South Africa, because before that point they were 20 of 20. They were going to cruise it in. Well, first of all, I would like to congratulate India. The mindset behind, the vision behind, and they did it for all the fans, all the fans of this beautiful game of cricket. Obviously, as a fan of cricket, we are also feel very happy for them because they done it for the right reason, and I think I'm really happy to see them lifting the trophy. And having said that, I think Shoaib also mentioned the same thing regarding that reverse swing, and that was the case. Obviously, if Bumrah is around, you can expect anything happen from him, because as Rohit also mentioned in his post-match interview, he said yes, he brings something on the table very specially, but how he made it, he has no idea. So this guy really is a master class of a bowler to me, who brings everything for the team, and really happy for them too. Right. Shoaib, your reactions on the match. You predicted India would lift the trophy. They have done that. But were you at all surprised by how the match went down in terms of the players and how easily South Africa could have walked away with the trophy? No, 100%. They actually done an amazing job by reaching the final, first of all. I think a very proud moment for South African cricket, and at the same time, I think the guys, all of them, African guys, I think they've done a wonderful job. I mean, like, they have given a run for the money. Literally, Indian was just panicking when the Klaasen was out there. And they literally won the game, and it took the game away from them. And had Klaasen stayed there for another 2 overs, the game would have been over. But Indians were panicking, for sure. And I thought at times that, I hope there is no bad luck happens to South Africa. And I was kept on saying to my manager, I said, listen, all we need is just a bit of bad luck for South Africa. Otherwise, they're just running away with the game now. So what else could have stopped them right now, right here? What else could have stopped them? There comes Hardik Pandya with the slower one. Klaasen is gone. So India, as Rohit Sharma mentioned, that it's the process that he talks about. That a lot of thinking that he's went into the process that he had for the last 3-4 years has been very painful. His whole beard turned black to white.
in that through process. And I think it's just not only this World Cup alone, it is the World Cup that they've lost last year that has taken a toll out of them, and the one before that, they've been in the finals, they've been in the semi-finals, they were down and about, they're investing tons of money, literally $1.5 billion went in from Indians into that tournament, and playing on top of that such a great cricket, and by not winning it at the same time, that becomes a very, very embarrassing as Indians. But I think it's well deserved win for Rohit Sharma. I'll be very honest with you. If anybody deserves this trophy, I think it was only Rohit Sharma. And God has honored him with such moment. I mean, a massive win, and I think the biggest takeaway, Roha, was just seeing obviously elation, but relief on the faces of the Yes. Indian A team. There were lot so of many that. tears. It was like a weight had just been lifted off their shoulders, and the emotion just poured out of every single player, Marty. I don't think there was a dry eye on the field. This meant so much to them, and credit to them for pulling themselves out of a really sticky situation, because honestly, hands up, I think that South Africa very nearly ran away with it when it was 20 off 20 and they were cruising it in with only 4 wickets down. What was your impression on, I guess, the turning point for India? How they dug themselves out of that hole? I guess you could say at that point it was South Africa's game to lose, and that's exactly what happened. They were cruising. They should have won. They should have taken it to the last 2 overs with only maximum 5 wickets down. Those 2 quick wickets in there really just stunted the rest of the chase really. And then obviously Bumrah coming back in and taking a couple there and not going for many runs in those last couple of overs that he bowled. It was he bowled extremely well. Credit to India, they stuck at it, they hung in there, and obviously the last over, Surya Kumar Yadav with a clutch catch on the boundary that could have turned, could have changed if he didn't get a hand on it, or if it had gone for 6 or anything like that. So, you think about those things. If that had gone for 6, 10 or 5, Miller going strong, what happens from there? It's a completely different story. But I mean, that's the absolute biggest clutch catch of his career, right? Like, imagine what was going through his head as that ball was coming towards the boundary. Pressure makes diamonds, and Sky has been so good with the bat that who'd have thought his fielding would have been one of the turning points today. It was a clutch catch, as I said, and not many people would have held their nerve and made the play. I mean, he only had inches to work with on the boundary and tiptoed round it to be able to stay inside the field of play, throw the ball up, step out, come back in, and he did it to absolute perfection. So a hell of a catch. Right, Yunus Khan, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता what it feels like to be in that position, जिसमें हम अभी visuals पे देख रहे थे रोहित शर्मा just tears in his eyes and looking around and couldn't quite believe what was happening. Process नहीं हो पा रहा था उस time पे, but his family was there, all the media were there, and everybody was just surrounding him. He was the most important man in that stadium at that time. कैसा feel कर रहे होंगे रोहित शर्मा? Because it means so much to them as a इस वक्त nation. तो स्काई हाई होंगे वो बिल्कुल. और जिस तरह उन्होंने खुद ये मेंशन किया कि ये अभी ये सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से इस तरह आ रहे हैं. और ये देखिए रोहित शर्मा की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बैक किया, विराट को बैक किया, सूर्य कुमार को बैक किया, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया. और उन्होंने जब भी वो स्टेटमेंट उनके मतलब बात होती है तो आप वो ये बार कह रहे हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं, कमाल करते हो. इस तरह के स्टेटमेंट जब आप अपने प्लेयर के लिए देते हो, उनको बैक करते हो, तो फिर एग्जैक्टली इसी तरह होता है. और 12 जब भी उनसे विराट कोहली की बात हुई तो उन्होंने कहा विराट कोहली के मुताबिक उनके मुताबिक बात कर रहे हैं, अभी देखें क्या होता है. और सडनली उन्होंने किया. तो देखिए ये सिर्फ ये एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये बेसिकली ये 4-5 जो टूर्नामेंट्स ये खेलते हुए आ रहे हैं, ये वहाँ की बात है. और वो डिज़र्व करते थे, वो डिज़र्व इसलिए करते थे कि उन्होंने एक टीम ऐसी बनाई जिसमें वो सिर्फ विराट की तरफ नहीं देख रहे थे, रोहित शर्मा की तरफ नहीं देख रहे थे, जस्ट बुमराह की तरफ नहीं देख रहे थे. अगर आप इनकी टीम में देखें तो वो एक कैच सूर्य कुमार यादव का, फिर उसके बाद वो एक विकेट जो कि 17th ओवर की फर्स्ट बॉल पे क्लासन का आउट होना. तो ये जब मेच्योर टीम होती है आपके पास और उसमें बहुत सारे मैच विनर्स होते हैं तो वो अपना पार्ट अदा करते हैं. तो मेरे ख्याल से और क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा और उनकी मैनेजमेंट को. राहुल द्रविड़ को बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो एक ऐसा बंच ऑफ प्लेयर उन्होंने इकट्ठे किए जिसमें जब प्रेशर पड़ते हैं तो सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, और जब उनको एग्जीक्यूशन होती है, जब उनको बहुत कुछ करना होता है तो उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो आते हैं और वंडर्स करते हैं. तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक ऐसी टीम बिल्ड की है कि अगर वो इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे तो बहुत सारे और जो है वो
ट्रॉफी जो है ना उनके लिए मुंतज़िर है। बिल्कुल, एक क्विक नजर भी डालते हैं मैच समरी पे. व्हाट वेंट डाउन टुडे इन बारबाडोस. ऑफ कोर्स इंडिया वन द टॉस and chose to bat first. No surprises there. It was a bright sunny day by the time the match started off. 76 for Virat Kohli, his last T20I for India, and what a way to bid farewell. 59 balls पे उन्होंने 76 किया. Winning player of the match Akshar Patel with 47 and Shivam Dube with 27. A careful 27. He could have built onto it, but thanks to South Africa's bowlers, Maharaj picking up a couple in his quota of 3 overs. Nokia with couple as well. Rabada and Jansen picking up 1 wicket each in their 4 overs. And in reply, of course, South Africa starting off the chase in a bit of a shaky manner, losing Hendricks early on, but Quinton de Kock with 39 off 31, and of course playing a superb knock was Henrik Larsson with 52 off 27, including 5 sixes for him. Tristan Stubbs did well support him on the other side, 31 for him, 21 for Killer Miller, who could have just stayed there and taken the game home, but it was Indian bowlers at the death, especially Hardik Pandya with 3 wickets off his 3 overs. Bumrah picking up 2 in his 4. Arshdeep Singh with 2 as well. And coming very close to that World Cup was South Africa, but in the end it was India winning the match by 7 runs and lifting the trophy. Let's talk about the king for a little bit. I think we have to. Because yeah. it was his last World Cup for India in the T20 format, last T20I for India. He did announce, and Erin, what a way to go for him. I mean, the king only knows how to sign off in style, doesn't he? It's an end of an era, the king being at the helm of Team India in the T20 format. It's crazy to think it's the last time that we've seen him, but what a way to sign off. We'd said a Kohli that's in danger of runs is a Kohli that's very, very, very dangerous. And that's exactly what he put up for us today, Shoaib. Leading from the front, he needed a big knock when he lost Rohit Sharma cheaply down the other end. But, I mean, what a career. What a way to finish. 76 or 59, player of the match in a T20 World Cup final, and you win the trophy. It was perfect fairy tale. 2 World Cups? 2011 and Yeah. now? Yeah, sure. There is no time to start playing cricket. Whenever you pick up the bat, whenever you take the ball, you become a cricketer. But you should know as a cricketer when to sign it off. I mean, that makes you you. And it takes a lot of courage for the people to, to just to say, listen, I'm hanging up my boots. I mean, this guy knows, he planned everything for himself. It's not just a one-day process. He must have discussed with his family, wife and everybody, and the management, obviously. But what a great way of signing it off. What a great way of leaving this game. Scoring runs, winning the World Cup, given a... I mean, integral knock in the end for India. It was exactly what they needed, an anchor right the way through the innings, Marty. As he signs off on what's been an incredibly illustrious career, one of the greatest to have ever played the game with the bat, absolutely. The emotions that go through your mind when you retire from international cricket, and what must he have been thinking? I think it's just his time in that format. He's played a lot of cricket in his career. I mean, he's played 100 matches in each format. A very select club to do that. I think there's only maybe 5 to 6 people who have actually done that. So, it's a pretty illustrious club. And, for him to bow out on his own terms is, fantastic. And, he's been able to be afforded that opportunity to do that. And then to have obviously sealed it with a World Cup win and 70-odd and a man of the match. It couldn't have written a better script for himself, really. The perfect end to the fairy tale of King Kohli. He's been exceptional for such a long time, and a deserved ending for someone who's just been what a proponent of the sport and a wonderful figure he's been. It's kind of hard to put it into words, to be honest, but congratulations. What a career. When we come back, we'll continue our discussion of the match of the all-important final of the World Cup. Don't go anywhere. We'll be right back. Ji, welcome back to HMR Waterfront presents Game On Air. We're talking about the big finale between India and South Africa. And in the end, after a close game, a nail-biter, we saw India lifting the World Cup after 17 years. उसी के ऊपर मज़ीद अब बात करते हैं. हमारे साथ, of course, हमारा panel मौजूद है who will walk us through what happened with that South African batting. हमने बहुत build-up में बात की हफीज़ about India's bowling, उनकी combination, कहाँ पे कुलदीप आएंगे, कहाँ पे अक्षर को वो यूज़ करेंगे, और बुमराह being बुमराह, once again उन्होंने दिखाया कि वो एक proper balanced combination लेके इस World Cup में आए हैं. और
पहले दिन से उन्होंने उन पिचेस की तैयारी की हुई थी जो कि टीम्स को शायद आइडिया नहीं था। गयाना में उनका सेमीफाइनल हुआ, फिर बारबाडोस में। व्हाट विल यू से ऑन द इंडियन बॉलिंग दैट हैज़ बीन विनिंग देम गेम आफ्टर गेम इन दिस वर्ल्ड कप? देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में तो वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन जो फाइनल में एग्जीक्यूशन है, जैसे फाइनल को जीतने के लिए जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, उसमें आपके एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स इतने हाईएस्ट लेवल पे आप लेके जाएं, तो ये स्पेशल होता है किसी भी प्लेयर की तरफ से। आप इस मैच को अगर आप देखें कि जो उनके मेन बॉलर थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुलदीप यादव, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ऑफ कलर रहा, बिल्कुल उनका एक ऑफ डे था, अच्छी जगह पे बॉल नहीं था गिर रहा, इट हैपन्स टू एनीवन। लेकिन जिस तरह रिप्लाई किया, रिवर्स स्विंग को इस्तेमाल किया तीनों फास्ट बॉलर्स ने, बुमराह ने 2 आउट किए, अर्शदीप ने 2 आउट, 4 साल 3 साल का प्रोसेस की बात कर रहे हैं रोहित, तमाम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, खुद क्रेडिट नहीं ले रहे। दिस इज़ हाउ द लीडर बेसिकली रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन जहाँ पे वो चाहता तो अपने लिए सब कुछ बोल सकता था, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस जर्नी। आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट ही सेड शोएब इन द पोस्ट मैच। इतनी खूबसूरत बात उस मौके पे, उस स्टेज पे उन्होंने की कि लोगों को नज़र आता है कि हमने ट्रॉफी आज जीती है, लेकिन ये आज नहीं है। लोगों को नज़र नहीं आता जो बिहाइंड द सीन्स जितनी हमने मेहनत की है ओवर द लास्ट 3-4 years टू गेट अस टू दिस पॉइंट। वो जो बिहाइंड द सीन्स मेहनत है ना शोएब, वो प्लेयर्स की लोगों को नज़र नहीं आती। रातों रात ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप जीत लेते। पहले यूनुस जवाब दे दें। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम ये बात करें ना कि इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं जो कि टीम बनते हैं। अच्छा, टीम में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कैप्टन होते हैं, उसके बाद उनके वाइस कैप्टन होते हैं, कुछ सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, और फिर मैनेजमेंट में अगर आप लकी रहें, हमारे पास भी ऐसा होता रहा है कि हमारे पास भी गाय बगाए ऐसे लोग आते हैं। बॉब वुलन की हम बात करेंगे कि वो जब आए तो हम सब इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने हमें एक्सप्रेस अपने आप को, अपने सेल्फ को करने के लिए दिया, और फिर हम इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह रोहित शर्मा ने ये बात की कि नज़र तो ये वर्ल्ड कप आ रहा है, ये ट्रॉफी नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे 3 से 4 साल है। तो उन्होंने जिस तरह सबको मैनेज किया, और अगर इससे पहले हम देखें तो विराट कोहली जब कैप्टन होते थे तो वो बैक करते थे रोहित शर्मा को। अब जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो वो विराट कोहली को बैक कर रहे हैं। और फिर जिस तरह विराट कोहली ने वो इनिंग खेली है हमारे सामने, और पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर नज़र आए, और एक इनिंग, और जिस तरह उनका सेंड ऑफ आज हुआ है, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है। तो ये देखिए, ये टीमें बनती हैं, ये सिर्फ एक कैप्टन से नहीं बनती, ये बल्कि 4-5 आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं। कैप्टन फ्रंट से तो लीड करते हैं, और उसके बाद कुछ मैनेजमेंट में अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग स्टाफ में कुछ ऐसे लोग आ गए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब आपने देखा हो कि जो खुशी थी इनके डग आउट में, और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें एक पॉइंट है, उसमें सारे इंडियंस बैठे हुए थे, उसमें कोई बाहर का नहीं है, सबसे टॉप की टीम खिलाते हैं। ये एक पॉइंट है आपको मैं, और जब आ रहे हैं हेड कोच सुनने में जो आ रहा है गौतम गंभीर, ही इज आल्सो वन ऑफ आपके अपने लोग हो, कैपेबल लोग हो, जो कि आपके मुल्क के हो, और जो कि अगर पाकिस्तान की टीम है तो वो अंदर से भी पाकिस्तानी हो, वो अंदर से भी इंडियन हो, अंदर से भी उस टीम के हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है टीमों में। राइट, व्हाइल वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट शर्मा, रोहित शर्मा, शोएब एज अ कैप्टन 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचे इंडियन टीम। 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रनर्स अप रही इंडिया, फिर 2023 ODI वर्ल्ड कप के रनर्स अप रहे, एंड फाइनली 2024 में दे हैव लिफ्टेड ट्रॉफी। बार बार उस स्टेज पे आना, हार जाना, एंड देन फाइनली डूइंग इट, व्हाट डज इट मीन for Team India, and of course the 2 great men who are bidding farewell, 3 great men actually. Rohit Sharma अभी तक official announcement नहीं आया, but we know it's his last World Cup as captain. Kohli and of course Rahul Dravid. देखो यार, हम तीनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं, हम तीनों को एग्जैक्टली पता है बीच की बात क्या है। हफीज़ भी जानता है, यूनुस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। वर्ल्ड कप पता है कौन उठाता है? कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है, और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, फिर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज कि उसका एक टारगेट था, एक मकसद था कि टीम इंडिया या हिंदुस्तान को एक दफ़ा वो वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। अब उस प्रोसेस के लिए उसने विराट कोहली का साथ दिया। आप भी जानते हो वो नेचुरल ओपनर नहीं है, उसने खिलाया,
उससे नहीं खेली जा रही, वो गेम उसकी है ही नहीं। उसको रन बॉल खेलना है, उसको बीच में एक दो चौके मारने हैं, बाद में आगे स्ट्राइक रेट ठीक करने के लिए इधर उधर चलाया तो उसका स्ट्राइक रेट ठीक हो। ये उसकी नेचुरल गेम है, खिलाया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हार्दिक पांड्या जिसको उसने रिप्लेस किया एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस के लिए, क्या उसने ग्रज रखी उसके लिए? हार्दिक पांड्या को गालियां पड़ी ग्राउंड के ऊपर बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा को रिप्लेस किया मुंबई इंडियंस में। आज रोहित शर्मा ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसको आके यहाँ पे इतनी बड़ी केस करके गया है हार्दिक पांड्या को। क्या किए गया है, थैंक यू वेरी मच कि तूने यू हैव कंप्लीटेड माय ड्रीम थ्रू योर बॉलिंग्स। ये होता है ऐसा ही थैंक्स गिविंग, दिस व्हाट यू कॉल थैंक्स गिविंग। ये थैंक्स गिविंग के लिए नेतन कप्तान का होना अच्छा बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस गाय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अल्लाह ने इसको 2009 की क्यों इज्जत दी? बिकॉज इसलिए बनता है। इमरान खान को 92 की इज्जत क्यों मिली? बनता था। बाद में क्यों नहीं मिली? बनता नहीं था। सो ऑल वी कुड सी इज कि मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि रोहित शर्मा वेल डिजर्व कैप्टन है इसकी ट्रॉफी के लिए। ये कह रहा था ना मैं आपको बार-बार, बिल्कुल कह रहे थे। मैंने आपसे कह रहा था ना इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा था अफगानिस्तान सेमीफाइनल करेगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करेगा क्योंकि यार हम एक बिखरा स्कैटर्ड शराजा है। इस सारे शराजे को बड़ा अच्छा सम अप किया हफीज ने, बड़े अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने आपको कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। एंड देन कम्स फ्रॉम द गाय हु आई रियली रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्ट टिल द डे नाउ, बिकॉज इसका मकसद सिर्फ ऑनरेबली ये होता है कि पाकिस्तान को फायदा हो। मेरा सिर्फ ये मसला था कि मैं निशानदेही कर दूँ, निशानदेही भी 10-20 साल से कर रहे हैं। डिटीरिएशन पाकिस्तान क्रिकेट आज की नहीं है। इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना 4 साल पहले का प्रोसेस है, बिल्कुल। ट्रॉफी का आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की डिटीरिएशन 20 साल का प्रोसेस है जिसका एंड रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या के बारे में बात की कि कैसे रोहित शर्मा ने उनको बैक किया, आज उन्होंने भी जैसे ही मैच वो जीते हैं और वो उस इमोशनल मोमेंट में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया आईसीसी को, उसमें उन्होंने भी बड़ी मजे की बात की है। और वो भी ये सोचने की बात है हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी, हर कॉन्टेक्स्ट में, कि उन पे जब बुरा वक्त आया, ही सेड कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज हियरिंग अबाउट फ्रॉम द लास्ट 6-7 months, बट आई स्टेड क्वाइट एंड आई न्यू दैट आई विल रिप्लाई ओनली डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कैप्टन आपको बैक कर रहा है, एज अ प्लेयर जब आप उस रफ पैच से गुजर रहे हैं, उस डार्क पीरियड से, खामोश रहना हफीज, अपने आप को डिग्निफाई जो है करके उस डिग्निफाइड तरीके से उसको कैरी करना और फिर ऐसे जवाब देना, हाउ स्पेक्टेकुलर। हम हमेशा ये मानते हैं और हमने सुना भी है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल। अगर आप इस टीम की तरफ जाएं तो देखें, इंडिया की टीम की ये जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये क्रिकेट खेली हुई और हमें पता है कि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हैं कामयाबी मिलती ही मिलती है, तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो देखें उनके 1-2 मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस कैसा था, जैसे कप्तान खुद बात कर रहे, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके, विच वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस को, अगर आप हार्दिक की बात करें, हमेशा जो अच्छा प्लेयर है या जो बड़ी स्टेज को के अंदर परफॉर्म करना चाहता है, वो छोटे मोमेंट्स कैच नहीं करता, वो बड़ी जगह का इंतज़ार करता है। अगर आप बात कर लें कोहली की, तो उसने क्वाइट रहा, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने उसको काफ़ी तरीके से कहा कि शायद ये ही इज़ डन एंड डस्टेड। देखें प्री मिच्योर है, लेकिन गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट थी बिफोर एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, आई थिंक दैट वाज वेरी प्री मिच्योर स्टेटमेंट फ्रॉम समवन हु माइट बी द नेक्स्ट कोच फॉर इंडिया। वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, आई थिंक दैट वाजंट द राइट टाइम। ये ख़त्म होता फिर बात करते, लेकिन ये क्वाइट मैसेज है कि जो बड़ा प्लेयर है वो उसको कैसे आपने डील करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रोहित शर्मा या विराट कोहली ये यंग नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो किस लेगेसी को उन्होंने छोड़ा है, दैट विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज। तो आई थिंक कोहली का आज रिटायरमेंट देना, आई थिंक वन ऑफ द, आई वुड से काइंड ऑफ अ शट अप कॉल टू एवरीवन कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने ग्रेट जोन में रहते हुए एक वर्ल्ड स्टेज को जीत के अपने मुल्क को दे के, एक विनिंग मोमेंट दे के उसने अपना एग्जिट लिया इस फॉर्मेट में। अभी वो वनडे और टेस्ट में रिटायर नहीं हुए, लेकिन इस फॉर्मेट में आई थिंक ही गिवन अ बेस्ट स्टेटमेंट टू एवरीवन।
और मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा की तरह वो बात है कि गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल, और ये अगर ये बात वाकई सच है तो वो हमें नज़र आ रही है रोहित को ये ट्रॉफी लिफ्ट करके, विराट कोहली का फाइनल के अंदर परफॉर्म करके, और राहुल द्रविड़ का आखिरी मैच जो एज ए कोच वो कर रहे थे वहाँ पे इस तरह का एग्जिट, आई थिंक दे डिजर्व दैट। आई थिंक ऑफ कोर्स ग्लोरी बहुत बड़ी है इंडिया की टीम के लिए, बट अगर हम दूसरे एंड पे देखें टीम साउथ अफ्रीका को, वो जो हमने विजुअल्स देखे, वेरी हार्ट ब्रेकिंग यूनिस टू सी दैट टीम, यू नो दैट फीलिंग वेरी वेल ऑल्सो, कि जब आप इतना करीब आए, क्योंकि आज भी उन्होंने मैच को वन साइडेड नहीं होने दिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपकी नज़र में टीम साउथ अफ्रीका के लिए क्या आप उनकी जर्नी पे क्या कहेंगे रिफ्लेक्ट करते हुए, एंड उसके बाद हम एक पैकेज भी देखेंगे उनके आज। अमेजिंग जर्नी थी इस वर्ल्ड कप में, जिस तरह उनका स्टार्ट हुआ और क्लोज मैचेस हुए, और हमने यही देखा कि जो प्रीवियसली आते थे किसी भी वर्ल्ड कप में आते थे स्मूथली, वो सेलिंग करते थे, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और हार जाते थे। इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, और मैच में सेलिंग तो बिल्कुल नहीं, अप एंड डाउन हुए, लेकिन वो जो एक पास्ट होता है ना, आप कहीं से आप वो आपसे हाथ से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली आज भी वही हुआ, 24 बॉलों पे कोई 26 रन रहते थे, आपके 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं, और एक ऐसा बैटर खेल रहे हैं जो कि अभी लगता था कि अगले 10-12 बॉलों में मैच ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे वो पार नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग है उनके लिए, उन्होंने एक अच्छा कैप्टन चूज़ कर लिया है, टीम उन्होंने कंबाइन कर ली है। जो हमने वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम के लिए कहा था कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, आगे कैसे मूव कर सकते हैं, अब वो ये ना करेंगे दोबारा जाएं और लीग्स खेलें और फिर वर्ल्ड कप के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएं। साउथ अफ्रीकन्स के लिए भी यही है, मैंने भी उनका ये देखा है रिसेंट पास में कि वो खेलने चले जाते हैं। अब वो मेक श्योर करें कि उनकी एक टीम सेट हो रही है और अब ये कंटिन्यूसली करें, उनका कैप्टन, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ और जो खास तौर पे प्लेयर्स हैं, इनमें वो स्पार्क है कि अब उन्होंने वो जो एक पार करना होता था ना, वो उन्होंने कर लिया। वो समहाउ वो नहीं जीत सके, ये डिज़र्व करते थे कि वो जीतते जिस मौके पे आ गए थे, लेकिन ये कि अब वो इसी तरह उनके लिए यही है कि वो इकट्ठे रहें, उनके सपोर्टिंग स्टाफ ये रहे, उनका कैप्टन कंटिन्यू, ये ना हो कि फिर अभी जाएं और फिर कोई नया कैप्टन नज़र आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये उनको यही करना चाहिए अगर उनको वंडर्स करना है इस क्रिकेट में। और इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि उनके डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में। टॉप ऑर्डर में क्विंटन डी कॉक यूनिस, ही वाज द वन जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे थे, लेकिन आज हेनरिक क्लासन ने भी कहा अमेजिंग बैटिंग। आई एम स्टिल हियर, एक झलक देखते हैं उनका आज का जो नॉक था। इस वक्त जब ये आउट हुए हैं 151 था और ये 17 और का पहला बॉल हुआ राना बॉल था। They still had 6 wickets in hand, but Shoaib, what will you say on South Africa's journey in this World Cup, coming so close once again? A tough journey. Final हारना easy नहीं होता, but you know what they say is the smooth sea never makes a good sailors, right? तो been a rough final for them. I hope जिस तरह यूनुस ने कहा, उनके कप्तान कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, मैनेजमेंट कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। जेलन बहुत अच्छा कर रहे हैं। Finally they have found a good captain. But very proud moment for Africa. और मेरी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन देखिए, मैच तो आपको फीफा वर्ल्ड कप याद होगा, पीटीवी नहीं दिखाया था, ये वर्ल्ड कप भी आप ही दिखा रहे हैं। 3 गोल मेसी भी कर गया, मेसी भी गोल कर गया, 3 एम्बापे भी कर गया, और यहाँ पे क्लासन भी कर गया, और रन बॉल भी नहीं है, लेकिन बच खुदा बीच में आ गया। अब उन्होंने कहा जी हमने इज्जत रोहित शर्मा को देनी है, और फैसला हो गया ऊपर से। हालांकि मैच में तो कुछ नहीं बचा हुआ था, फैसला तो हो चुका था, लेकिन फैसला ऊपर होना बाकी था कि हमने देना किसको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ा दी उधर। उन्होंने कहा जी नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये 2 ओवर पहले मैच खत्म हो सकता है, लेकिन 2 ओवर पहले मैच हमने खत्म नहीं होने देना। बट व्हाट ही हैज़ बीन थ्रू, कि अगर हार्दिक पांड्या की जर्नी आप देखेंगे फॉर लास्ट 6-7 मंथ्स, पर्सनल लाइफ से लेके उसकी क्रिकेट लाइफ तक, आईपीएल की जर्नी देख लें, यहाँ तक तो बड़ा बहुत टफ टाइम था आईपीएल में, कि फर्स्ट टाइम ये कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि आपके टॉप के प्लेयर के खिलाफ जो है नाराबाजी हो रही है। ये हमने तो कभी नहीं देखा, मेरे ख्याल से कभी बहुत कम हुआ अनरियल था। एंड यू कुड टेल फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज इन दोस फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स जो हमने भी नोटिस किया था, बट देन ही फाउंड अ वे टू बाउंस बैक। एंड आई थिंक आज जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, everybody will remember those visuals, and all of the people who had nasty things to say about him, I think he has turned everybody into his fans, and ये बहुत important यही तो मोमेंट्स आपको बंदे का पुत्र बनाते हैं ना। बुज़दिल आदमी भाग जाता है, बड़ा आदमी ये मौका देख के बड़ा हो जाता है। कोहली पूरी टीम आउट होगी और उसे मौका दो, वो ये मौके ढूंढ रहा होता है कोहली, कि टीम जब सारी फारिग हो जाए, अब सिचुएशन आ गई मेरे पे। हम क्या करते हैं, हम बचते हैं इन सिचुएशन से। क्यों बचते हैं? और देखिए, मैं एक चीज ऐड करूं, जो अच्छी टीम होती है, जो यूनाइटेड होकर खेलती है,
वो क्रेडिट नहीं लेती, वो दूसरों Credit को देती प्रेस है। करती है। हाँ किसी एक ने भी, इवन कप्तान ने अपनी मैं नहीं की, उसने सबको प्रेस किया, उसने अपने इंडिविजुअल्स को बड़ा किया। Absolutely. इंडिविजुअल्स दूसरे टीममेट्स को बड़ा कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ टीम। अनफॉर्चुनेटली वो टीमें जो सिर्फ अपने इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं करना जानते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। तो इस टीम की जो कामयाबी की, ठीक है, बहुत सी चीज़ों पे काम हुआ होगा, टेक्निक पे, टैक्टिक्स पे, फिटनेस पे, लेकिन जो मेंटल पार्ट है, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने हिट किया है, सबसे ज़्यादा उसकी लुक आफ्टर किया है कि कोई भी शख्स कामयाबी के बाद क्रेडिट लेने के जोन में नहीं है। सब एक दूसरे को बड़ा कर रहे हैं, सब एक दूसरे की एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई थिंक यही कुछ वो खसूसियात हैं जो शुएब भाई बात कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों को ये चुना जाता है। जब आपकी एज ए टीम ये खसूसियत डेवलप हो जाए, एक या दो बंदों के साथ भी नहीं जीता जाएगा कि कोई एक बंदा कहे कि जी मैं बिल्कुल मुखलिस हूं तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। everyone, each and everyone involved have to think the same way। और जो इन्होंने बात की है, मैं उस पर सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ यूनुस भाई ने, कि देखें पाकिस्तान और इंडिया को 5 या 10 साल पुरानी टीम नहीं है जिसको बाहर के कोचों की जरूरत पड़े। मैं ये नहीं कहता उस्ताद है, कहीं का भी आएगा उसने आपको बेहतरीन हल बताने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं, लेकिन अगर आपके पास अपने ग्रेट्स ऑफ द गेम मौजूद हैं जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक्नॉलेज नहीं करते, इसलिए हमारे लिए बहुत सी पस्तियाँ, हमारा मुकद्दर जो है वो बन के बैठेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप रख लें, लेकिन जो डिजर्व करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं और जो डिलीवर कर सकते हैं और जो सोचते हैं, देखिए खुशी कब होती है जब आज आपने इंडिया का डकआउट देखा, वो जैसे ही वो आउट हुए हैं और फिर वो जो जिस तरह उन्होंने मैं सबसे ज्यादा जो सबसे पहले जो विजुअल्स आए जब ये वर्ल्ड कप जीते हैं, सबसे पहला जो इंटरव्यू आया उस टाइम पे वो मोहम्मद सिराज का था, who didn't even get to be part of the playing 11, but he was sitting on that bench, he was rooting, और वो इतने खुश थे, he could not speak because of the emotions. He thanked the Almighty Allah and he said this is what we wanted as a team and we've worked for it। हर बंदे ने ये बात, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ इन दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम टीम इंडिया, हु थॉरली डिजर्व्ड टू विन एंड टू लिफ्ट द टाइटल। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ऑन HMR Waterfront presents Game On है, बट व्हेन वी कम बैक वी हैव सम प्राइजेस टू गिव अवे।